challenging era, notably he commanded 297 field regiments in Mandiwala, Jammu and Kashmir, commanded 10 artillery brigade as brigadier commander in Aknoor, Jammu and Kashmir. Throughout his service, he held various prestigious appointments, including battery commander, brigade general staff officer, deputy project manager, and as colonel administration. Currently, he serves as a group commander, a position he took on October 28, 2023. Brigadier Barbieri's exceptional service has been recognized with numerous honors and awards, including Special Service Medal with Class Suraksha, Saniya Seva Medal, O.P. Vijay Medal, and the 9-year-old Long Service Medal. It can symbolize the triumph of knowledge over ignorance, hope over despair, and light over darkness. We at St. Joseph's Convent School have a ritual of lighting of the lamp, particularly significant when inaugurating events, essentially inviting positive energy and in honor of the wisdom to envelop ourselves in the halo of the enlightenment. I invite our highly regarded chief guest, Brigadier A.G. Parvade, special guest, Major Kanaklata Chore, our principal, Sister Ansi, the manager, Sister Namita, Mr. Pavan Agarwal, the parent representative, to kindly come forward for the lighting of the lamp. We now officially declare the beginning of our annual concert 2024-25. I invite Anshika Agarwal and Yusra Ahmed to lead us for further proceedings. Yes, it is our honor to welcome you all to the annual concert of St. Joseph's Convent School, TF Ride.
I, Anshika Agrawal, and my friend Yusra Ahmed Khan will be your anchors for the day. Distinguished guests, we are thrilled to have you for a spectacular annual concert where magic meets excitement and wonder. Step right up and experience the vibrant sights, sounds, and thrill of a carnival night. Carnival is a celebration of life, joy, and self-expression. It brings people together, fostering unity and encouraging creativity. Today, we transform this venue into a mesmerizing world of adventure, joy, and laughter. Get ready to be enchanted by the captivating performances, thrilling dances, thought-evoking plays, spellbinding musical melodies, and a celebration of our achievements. Join us on the fantastical journey where dreams come alive and memories are made. Now, no more waiting. Let the carnival begin. We bring to life the spirit of a carnival, a place where joy knows no bounds, where music, dance, and color fill the air, and where we will come together to celebrate the magic of creativity and togetherness. And what better way to begin this celebration than capturing the essence of a carnival? A vibrant explosion of rhythm, energy, and music. Our talented choir, with their harmonious voices, welcome you, dear guests and parents, with a welcome song. So, get ready to immerse yourself in the festive spirit as our students present the opening chorus, a performance that will have you tapping your feet and clapping along to the rhythm of the night. We welcome you within us.
balance joy and sorrow, like the seesaw of fate. But before we immerse ourselves in the festivities, let us take a moment to reflect and connect with the deeper essence of this vibrant celebration. Next in line is the prayer dance, a beautiful fusion of devotion, grace, and rhythm. It brings together the elements of spirituality and celebration, reminding us that at the heart of every festival there is always a prayer, a wish for goodness and harmony. So, without any delay, let us witness the prayer dance. I request everyone to avoid clapping after the prayer dance. of faith. Report has the power to inspire change. Now it is the time for our annual school report. Annual school report provides an overview of school performances, progress and challenges, recognizes and celebrates student, staff and
and teacher achievements. It is my pleasure to invite our Honorable Principal, Sister Ansi, to present the annual school report, highlighting our achievements and progress over the past. I would like to begin by expressing my gratitude to God for this wonderful day and the chance to come together this evening. Warm greetings to everyone present here. On behalf of the management, staff and students of St. Joseph Convent School, TFRI, I extend a heartfelt welcome to our chief guest, Brigadier A.G. Barbare, and our special guest, Major Kanaklata Chowdhury. I am truly honored to welcome our esteemed dignitaries, respected fathers, sisters, honored guests, and cherished well-wishers. Your presence today elevates this event and fills us with immense appreciation and joy. We are grateful for the gift of your time and the honor of your presence. Our school is a great oracle of vision that emphasizes on character building of a natural, holistic, student-centered learning environment that empowers and inspires our students to be creative and innovative. Where the heartbeats of Goa come alive in all their colorful glory. Today, we are not just partaking in a tradition, but we are diving into the very soul of Goa, the Goa Carnival. And there is no better way to capture the spirit of this grand festival than by honoring the one and only King Momo, the symbol of joy, revelry and unity. Are you ready to feel the pulse of Goa? To experience the sheer joy and energy of this celebration, let's raise our spirits high, for tonight we all are part of this celebration. Let the music play, let the dance begin, and let the kingdom of King Momo fill our hearts with an everlasting sense of joy, unity, and celebration. In this fleeting yet eternal moment, Goa's spirit shines brighter than the brightest costume, a true marvel of wonder. King Momo is a central figure in the Goa Carnival celebrations. He is a mythical character who is said to be the king of Carnival and is a symbol of joy, merrymaking and excess. During Carnival, King Momo flags off and leads the float parade. He is typically portrayed by a local man who is chosen for the role based on his physical appearance and his ability to embody the spirit of Carnival.
state of Goa to our state. Let's give them a thunderous applause for their energy, enthusiasm and mesmerizing moves. It is now my honor to invite our highly respected chief guest, Brigadier A.G. Barbare, to grace the stage and share his insightful thoughts with us. जय हिंद। मेजर जनरल राणा, GCI प्रिया, सिस्टर अंशी, सिस्टर निर्भया, distinguished guest sitting ahead, इंस्ट्रक्टर प्रिया मैडम, इंस्ट्रक्टर NCC और मेरे प्यारे भाई बहन बोलो या मेरी तरह माता पिता बोलो। मैं सोच रहा था मैं आपसे क्या बातें करूँ। मुझे यहाँ तक इसलिए बुलाया गया, एक आर्मी ऑफिसर करके बुलाया गया या NCC का ग्रुप कमांडर करके बुलाया गया, कारगिल के बारे में बात करने के लिए बुलाया गया, भारतीय सेना के बारे में बात करने के लिए बुलाया गया, या एक पिता होने के नाते बुलाया गया। मेरे सामने मुझे बताया गया है कि सारे पेरेंट्स हैं, तो मैं चाहूंगा कि मैं उसी रोल में आपसे बात करूं। मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, जितना मैडम ने मेरी तारीफ में बोला था। मुझे पक्का यकीन है यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे पालक ऐसे होंगे जिन्हें अपनी जिंदगी में और अपने कार्यों में बहुत बड़े बड़े मकाम हासिल कर लिए होंगे। मैं मेरे फील्ड में कुछ ना कुछ योगदान करता हूँ, लेकिन मेरे पास मेरे साथ मेरी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है साथ में, भारतीय सेना। क्या मैं आपसे बोलने के काबिल हूँ क्योंकि मैं सबसे ओल्डेस्ट हूँ? शायद मैं ओल्डेस्ट हूँ यहाँ पे। somebody will match me, elder like me। आमतौर से छठी का बच्चा एंड 12वीं का कक्षा का छात्रा है। पेरेंट्स की उम्र 35 से लेकर 45 तक होनी चाहिए। 19-20 इधर कर लो, कुछ एक लोग 45 से 50 में होंगे। तो मैं सबसे एल्डेस्ट हूँ क्योंकि मैंने हाफ सेंचुरी पार कर ली है। लेकिन क्या मैं सबसे वाइजेस्ट हूँ, इंटेलिजेंट हूँ? कदापि नहीं। मैं आप ही की तरह एक बालक हूँ। हाल ही में मेरी बेटी ने 12वीं कक्षा पास की है और मेरे बेटे ने ग्रेजुएशन करके अभी डेटा एनालिटिक्स कर रहा है, आर्मी की एग्जाम दे रहा है और आज नहीं तो कोई आर्मी अफसर बनेगा। बेटी IAS के बारे में सोच रही है, वो भी IAS अफसर बनेगी, मुझे यकीन है। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, इसमें सिर्फ उनकी मेहनत है। मैं अभी और एडवाइस तो नहीं करूंगा आपको, मैं कुछ बातें बताऊंगा, चंद एक बातें। उसमें से आपको कुछ लेना है तो ले लीजिए, आपने ऑलरेडी कुछ ले चुके होंगे तो मत लीजिए। और जिसको उचित नहीं लगता है, 2 कान हैं, बाएं से सुन के दाहिने में आउट कर दीजिए या उल्टा कर दीजिए। मैं मेरे कुछ दोस्तों के बारे में बताऊंगा जो मेरे साथ थे स्कूल में, कॉलेज में। हम में से 3 लोग आर्मी में आए, हम में से एक व्यक्ति डॉक्टर बना। मैं मेरे सिर्फ क्लोज 8-10 दोस्तों की बात करूँ। 3 IT में गए, एक ने बिजनेस स्टार्ट किया, एक IIT मुंबई में गया। 3 आर्मी में जो आए उसमें से सिर्फ मैं आर्मी में आना चाहता था, बाकी 2 लोग मेरे साथ सीख के आ गए। उसको डॉक्टर बनना था तो बोला आरूप मैं आर्मी में आना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर भी बनना चाहता हूँ। तो वो आर्मी में ऑफिसर बना, मेडिकल ऑफिसर भी बना। अभी उनके बच्चों के बारे में बताता हूँ। एक का बच्चा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है, एक का बच्चा IIT पढ़ रहा है, एक का बच्चा बिजनेस कर रहा है, एक का बच्चा
मास्टर्स कर रहा है, एक का बच्चा बीएड करके टीचर बनने वाला है, एक का बच्चा लॉयर बन रहा है। एक व्यक्ति ने इच्छा नहीं थी, लेकिन कहने के अनुसार, पेरेंट्स के कहने के अनुसार या लोगों के कहने के अनुसार आईआईटी के लिए पढ़ाई की, बहुत मेहनत की, लेकिन थोड़ा सा उसके काबिलियत से थोड़ा सा दिक्कत में था, तो उससे बाद में आईआईटी सिलेक्शन होने के बाद उसने वहां से ड्रॉप ली और आज वो एमबीए कर रहा है और आगे बढ़ेगा। एक और जो मेरी बेटी जब मुझे पूछ रही थी कि क्या करना है पापा, तब मैंने सोचा कि मैं उसको बताऊं या उससे मैं सीख लूं, ये मेरे मन में चल रहा था। क्योंकि आजकल की पीढ़ी हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। मेरे पेरेंट्स 10वीं पास थे, हमें न्यूज़पेपर एक मिलता था घर में, टीवी में एक चैनल होता था, उतना ही पढ़ के बाकी जो घर के बुजुर्ग बोलते थे और टीचर्स बोलते थे, हम उससे आगे बढ़ते थे। फुल स्टॉप। हमारी सोच, हमारी रुचि हमें समझने में टाइम लगा। आजकल के बच्चों को सब चीजें पहली बात ही पता है और अच्छी बात है। दो सिमिलर चीजें बताऊंगा आपको अभी। एक व्यक्ति पढ़ाई में बहुत अव्वल, आगे बढ़ती गई, हमेशा फर्स्ट आई, इच्छा बनने का कुछ और था, दोस्त बनना चाहते थे डॉक्टर या पेरेंट्स बोलना चाहते थे डॉक्टर, उसने मेडिकल प्रोफेशन लिया, बहुत खिंचाई हुई उसकी, एमबीबीएस नहीं मिला, होम्योपैथ मिला, बीएचएमएस बन गई, डॉक्टर बन गई, मेहनत करती गई, लेकिन उसकी रुचि उसमें नहीं थी और तब से उसने अभी तक 8 अलग अलग प्रोफेशन ट्राई किए और अभी तक एट द एज ऑफ 45 सुखी है, शादी हुई है, 2 बहुत बेहतरीन बच्चे हैं, बहुत सुखी है, धन दौलत सब कुछ है, लेकिन खुद को एक मानसिक शांति नहीं है, क्योंकि उसने वो प्रोफेशन चुना किसी भी कारणवश जो उसकी रुचि में नहीं थी। एक और एग्जांपल, एक बच्चा है 8वीं में, तय करता है कि मैं आर्मी में जाऊंगा, उसके घर में कोई फौज में नहीं है, मदर फादर अक्षमित, क्लास में पहला आने वाला लड़का, हमारे टाइम भी वो था, अभी भी आपके टाइम भी वही होगा, इंजीनियर है, डॉक्टर, एटलीस्ट आपके आप कुछ सोचते नहीं है। तो मैं बात कर रहा हूँ 80-80, तो मेडिकल जाइए, डॉक्टर बनिए या इंजीनियर बनिए, तब आईटी का इतना जोर नहीं चला था। तो जब आर्मी बोला मैंने, तो किसी को पता नहीं था आर्मी का क्या करना है। अपनी मेहनत करते गए, किसी से गाइडेंस लेते गए, आगे बढ़ते गए, तब कोचिंग क्लास इतने नहीं थे जो अभी आगे हर चौराहे पे कोचिंग क्लास मिलता है। तो मेरे पेरेंट्स को लगा कि मैं आर्मी में जाऊंगा, कश्मीर में जाऊंगा, खत्म, की बात। मेहनत कर करके आर्मी में ज्वाइन किए, 30 साल हो गए, आज आपके सामने समक्ष बातें कर रहा हूं। एक दिन ऐसा नहीं आया जिंदगी का जिसमें मुझे लगा कि मैंने ये प्रोफेशन क्यों चुना, मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं यहाँ सुखी नहीं हूँ, मैं यहाँ दुखी हूँ। वो बहुत मजे में है, मैं बहुत परेशानी में हूँ, उसके पास बहुत पैसा है, मेरे पास थोड़ा और पैसा होता तो अच्छा होता। एक बात मन में विचार नहीं है, एक क्षण में भी नहीं विचार। ये जो पहले व्यक्ति का मैंने आपको स्टोरी बताया, वो मेरी सिस्टर थी, कजिन सिस्टर, और दूसरी व्यक्ति का जो स्टोरी बताया मेरी व्यक्ति है। दोनों अपने तरफ से सुखी है, लेकिन मेरे जीवन में परिपूर्णता है। सफलता आप कैसे नापते हो उसके ऊपर है। इज्जत से सफलता नापते हो, पैसे से सफलता नापते हो, गाड़ी से सफलता नापते हो, प्रमोशन से सफलता नापते हो, औहदे से सफलता नापते हो, वो हर एक व्यक्ति के ऊपर होता है। लेकिन मैं मेरे पेरेंट्स का शुक्रगुजार हूं
कुछ नहीं पता था उनको, लेकिन उन्होंने मेरे सिर्फ विचार के ऊपर भरोसा किया और मुझे रोका नहीं, कंधे पे हाथ रखा, तू चल, हम तुम्हारे साथ हैं। Showing kindness to animals brings you closer to humanity. Next in line, we have the Jungle Carnival, telling us that hunting made certain animals go extinct all over the world. This performance reminds us that every element, no matter how small, has a role to play in the larger ecosystem. Ladies and gentlemen, imagine stepping into a world where every breath is filled with the dances through a canopy of green, and where the symphony of rustling leaves and chirping birds creates a melody of peace and joy. Today, I want to take you on a journey into this magical world. Our story will reveal how these animals and birds not only coexist but thrive together, creating a happy place where nature's beauty and balance are on full display. Through their eyes, we will see how the forest is not just a home but a heaven, a testament to the joy that comes from living in harmony with one another. Darling, look, our eggs are about to hatch. Oh yes, dear, God has showered His blessings upon us. Let's rejoice.
from the respecting the animal's territory is crucial for preserving the vibrant tapestry of the jungle. We ensure that the natural carnival of wildlife continues to thrive for everyone to enjoy. Let us protect their home and celebrate the beauty of nature together. Of courage, compassion, and wisdom, Ahilya Bai Holkar's legacy inspires us to stand for what is right. Let us witness this thought-evoking dance run. कहते हैं कि साहित्य का अध्ययन करने के बाद आदमी को पता चलता है कि उस समय की सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। संसार में जितने प्रसिद्ध स्थान एवं नगर हैं, उनकी ख्याति के कुछ न कुछ विशेष कारण हैं। आज हम आपके समक्ष हमारे देश की जिस वीरांगना का जीवन चित्र प्रस्तुत करने जा रहे हैं, वो है इंदौर राज्य की महारानी अहिल्या बाई होल्कर, जो लोक माता अहिल्या के नाम से भी विख्यात है और जिन्होंने सर्वप्रथम स्त्री शिक्षा पर आवाज उठाई। तो आइए देखते हैं नाटक लोक माता अहिल्या बाई होल्कर। पुजारी जी, अचानक आप कुछ कार्य था तो मुझे बुला लेते। आपने आने का कष्ट क्यों किया? ऐसा कोई विशेष कार्य नहीं था मानकू जी, इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलूं। ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि आप मेरे यहाँ पधारे हैं। आइए स्थान ग्रहण कीजिए। धन्यवाद। अहिल्या कहाँ है मानकू जी? भीतर है, अपनी पाठशाला का सबक याद कर रही है। अरे सुशीला, पुजारी जी आए हैं, जरा जलपान तो ले आओ। जी अभी लाई। आपकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आप अपने पुत्रों के साथ अपनी पुत्री को भी शिक्षा दे रहे हैं। क्यों नहीं पुजारी जी, पुत्र और पुत्री में कैसा भेद? और फिर जहाँ पुत्र मात्र एक कुल का सम्मान बनाता है, वही एक पुत्री दो दो कुलों का सम्मान संभालती भी है और अपनी सूझबूझ से आगे भी लेके जाती है। धन्य हो मानकू जी, आपके इन्हीं विचारों से एक दिन समाज में परिवर्तन आएगा और हमारे परिवारों के समान ही हमारे देश की भागदौड़ भी हमारी बेटियां संभालेंगी और न सिर्फ देश बल्कि विश्व पटल पर हमारे देश का परचम फहराएंगे। मानकू जी, अहिल्या के गुणों की चर्चा अभी से अपने समाज में होने लगी है, इसलिए मेरे मन में एक विचार आया है। क्या पुजारी जी? मल्हार राव होलकर जी,
अपने पुत्र खांडेराव के लिए एक योग्य कन्या की तलाश कर रहे हैं। आप कहें तो हम अपनी अहिल्या का नाम उनके समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं पुजारी जी? कहा महाराज मल्हार राव और कहा हम? अपनी अहिल्या के गुणों पर आपको संदेह है क्या? नहीं नहीं पुजारी जी, मेरी अहिल्या तो खरा सोना है। जितना सुंदर उसका मन है उतना ही सुंदर उसका स्वभाव और व्यवहार है। तो फिर देरी किस बात की भला? मुझे अनुमति दीजिए कि मैं महाराज मल्हार राव से अहिल्या के संदर्भ में चर्चा कर सकूं। जैसी आपकी आज्ञा पुजारी जी। तो फिर आज्ञा दीजिए। जय सिद्धेश्वर महादेव। जय सिद्धेश्वर महादेव। अहिल्या कहाँ है? वो तो महादेव की पूजा कर रही है। इतनी सुबह? अभी कल ही तो उनका विवाह हुआ है और इतनी नन्ही सी हमारी पुत्री महादेव की पूजा करने उठ भी गई। हमारे पुत्र वधू बहुत ही सुशील और अनुशासन प्रिय है। वो न सिर्फ प्रातः जल्दी उठ गई बल्कि मेरे साथ काम में हाथ भी बटाया। और खांडेराव जो कि बहुत ही जिद्दी स्वभाव के हैं, उन्हें भी अपनी मधुर वाणी से समझाने का प्रयत्न किया। अहिल्या ही हमारे परिवार और राज्य को एक सही दिशा प्रदान कर सकती है। जी महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा। समय बीतता गया और इस बीतते समय के साथ लाडली अहिल्या धीरे धीरे एक कुशल गृहिणी बनी और पुत्र मालीराव तथा पुत्री मुक्ताबाई माता होने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही ईश्वर के प्रति उनका भक्ति भाव भी बढ़ता ही रहा और अपने राज्य के दीनहीन वर्ग के लोगों की सहायता करने एवं नारी शिक्षा को महत्व देने में लोक माता ने कोई कसर नहीं छोड़ी।
हो पुत्री? खांडेराव कहाँ है? प्रणाम पिताजी। जीते रहो पुत्र। तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। आज्ञा पिताजी। हमें युद्ध के लिए रवाना होना है, तैयारी कर लो। जो आज्ञा पिताजी। अहिल्या, हम राज्य की व्यवस्था तुम्हें सौंप कर जा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि तुम इस जिम्मेदारी को बखूबी संभालोगी। जो आज्ञा पिताजी। दिल का था हमने सहारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजयी बना, विजयी बना। जब जब शमशीरें तानी है आए भवानी, उठे शत्रु जड़ से ही मिले हमने, बात यही मन में ठानी है आए भवानी। हम सबको बड़े बड़े खुददार है, अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है, अब ये खींच ना जुड़े तेरी नाच हम रखे तेरे। हाँ मंत्री जी, पर हम युद्ध के निर्णय को तो बदल सकते हैं ना। इस युद्ध ने हमें दिया ही क्या है? युद्ध में मात्र निर्दोष सिपाहियों का रक्त बहता है और एक सिपाही के साथ उसका पूरा परिवार इस नफरत की आग में झुलस जाता है। महाराज, अपने आप को संभालिए। अभी आपको महारानी जी और पुत्री अहिल्या को भी संभालना है। मैं उन दोनों के सामने किस मुंह से जाऊं? क्या कहूंगा उन्हें? एक पिता सदैव अपनी संतान को स्वयं से आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, परंतु मृत्यु शैया पर नहीं, कभी नहीं। गौतमा, महाराज, आपने अपने आने की सूचना नहीं दी।
युद्ध जीतने की शुभकामनाएं। पुत्र खांडेराव कहाँ है? वो क्या हुआ महाराज? कहाँ है मेरा पुत्र? आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? बोलिए ना, कहाँ है वो? महारानी, आपका पुत्र युद्ध में क्या महाराज? जी महारानी, खांडेराव युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। क्या? जी महारानी, खांडेराव युद्ध में बहुत ही बहादुरी से लड़े और दुश्मनों को धूल चटा दी, परंतु दुश्मन के एक सिपाही ने छल से उन पर वार कर दिया। नहीं, मेरा पुत्र! नहीं महाराज, ऐसे नहीं जा सकता मेरा पुत्र, ऐसे नहीं जा सकता वो। संभालिए महारानी, अभी ये समाचार हमें पुत्री अहिल्या को भी देना है। हम क्या कहेंगे अहिल्या से? आप रो क्यों रही हैं? पुत्री! क्या हुआ माता जी? बताइए ना, बताइए। पुत्री अहिल्या। जी पिताजी। खांडेराव ने युद्ध में वीर गति प्राप्त की। नहीं स्वामी। माता जी, मुझे भी अब आज्ञा दीजिए कि मैं अपने पति के साथ चिता की अग्नि में सती हो जाऊं। अहिल्या, ये क्या कह रही हो? जी पिताजी, मुझे भी आज्ञा दीजिए। पुत्री, मेरा पुत्र तो मुझे छोड़ ही गया है, अब तुम भी इस बूढ़े को यूं छोड़ जाओगी? पिताजी, समाज का यही नियम है कि एक वीर गति को प्राप्त योद्धा की पत्नी को उसके साथ ही सती होना पड़ता है। इस संसार में अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा। और ये बच्चे, इन्हें किनके सहारे छोड़े जा रही हो? अभी अभी इनके सिर से पिता का साया छिन गया है और तुम भी अपने प्राण त्याग दोगी तो ये बच्चे तो अनाथ हो जाएंगे और इस राज्य की जनता का क्या होगा? कौन संभालेगा ये सब? परंतु पिताजी, मैं तो सिर्फ समाज की रीति का ही पालन कर रही हूँ। मैं नहीं मानता ऐसी किसी भी रीति को जो किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध मृत्यु का वरण करने के लिए मजबूर कर दे। और फिर जब किसी पुरुष की स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो समाज तो उस पुरुष से नहीं कहता कि उसे भी अपनी स्त्री के साथ चिता में बैठना चाहिए। तो फिर स्त्रियों के साथ यह अत्याचार क्यों? मैं मल्हार राव अपने पूरे परिवार, मंत्री परिषद और समाज के सामने ईश्वर को साक्षी मानकर आज अपनी पुत्र वधू अहिल्या बाई होलकर को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। साथ ही यह भी घोषणा करता हूँ कि मेरे राज्य में कोई भी स्त्री अब अपने पति के साथ सती नहीं होगी, वरन उसे अपना जीवन अपने तरीके से व्यतीत करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। अब सबसे पहले मेरे पुत्र खांडेराव की राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई होगी। सुबह मेरी पुत्री अहिल्या बाई का राज्याभिषेक होगा। अपने पिता महाराज मल्हार राव होलकर जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपना राज्य संभालने के योग्य समझा। मैं आप सभी प्रजावासियों को यह आश्वासन देती हूँ कि मैं आपके प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ करूंगी। इसके साथ ही मैं नारी शिक्षा के लिए विशेष प्रयत्न करूंगी।
जिससे हमारे राज्य की बालिकाएं और स्त्रियां शिक्षित होकर अपने परिवार और राज्य को गौरवान्वित कर सकें। साथ ही वह अपनी स्वयं की सुरक्षा भी कर सकें। नारी शक्ति की प्रतीक महान अहिल्याबाई होलकर का नाम, धीरज, साहस और बलिदान उनके जीवन का था यह अरमान। न्याय की देवी, परोपकार की शान, हर कदम पर किया उन्होंने जन कल्याण। प्रजा के लिए थी वो मां समान, धरती पर उतरी जैसे कोई महान। शत्रु के सम्मुख डटी रही, कभी न मानी उन्होंने हार। अपनी प्रजा की सेवा में रहती थी दिन रात तैयार। सदियों तक वो प्रेरणा थी, मूरत बनकर खड़ी रही। हर दिल में उसकी गाथा प्रेम और सम्मान से बनी रही। उनके पद चिन्हों पर चलकर हर नारी को मार्ग मिला। होलकर की रानी अद्वितीय, इतिहास में उन्होंने नाम किया। धर्म की रक्षक, न्याय की मूर्ति, सिंहासन पर बैठी प्रजा की सच्ची मूर्ति। ममता की मूरत, शौर्य की कहानी, अहिल्याबाई होलकर युगों युगों की रानी। लोक माता अहिल्याबाई की जय, लोक माता अहिल्याबाई की जय, भारत माता की जय। Our talented performers brought history to life, reminding us of the significance of our Indian heritage. It is time that we now show you this year's Victory Gala, a celebration of excellence, determination, and the spirit of sportsmanship. This gala is more than just a celebration of victories. It's a celebration of the journey. Tonight, we recognize the exceptional individuals who have not only achieved greatness on the field, but have done so with integrity, sportsmanship, and a deep respect for the spirit of the game. Whether on the track, in the pool, on the court, or in the rain, each of you has inspired us with your dedication and your commitment to excellence. So, it's now the time to pick. From cricket to badminton, hockey to athletics, wrestling to chess and javelin, our athletes have faced challenges, set records, and won medals that fill the nation with pride. Every victory unites us in joy, reminding us of what we can achieve together. These moments of triumph go beyond personal glory. They touch the heart of every Indian, inspiring pride, happiness, and hope. Let's celebrate and honor our champions standing united in our love for sports and the achievements that bring us closer as a nation.
to harmonize with the rhythm of the night. As next in line, we have the musical medley. Experience the airy elegance of the flute, the rhythmic sounds of the synthesizer, and the six-string sensation of the guitar. Experience the dynamic fusion of sound. You will be transported